بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہرا چولا پہنے فقیر روز ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتا اور کہتا کہ یہ مالا جو عورت بھی پہنے گی اس کا شوہر اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا، لیکن عورتیں کہتی کہ یہ سچ کہتا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے ہر وقت لڑتا رہتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ مالا پہن کے دیکھ لوں۔ لیکن جیسے ہی وہ مالا میں نے پہنی، رات کو میری آنکھ کھلی اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ابھی میں عمر ہی تھی جب میرے گھر کے برابر والے گھر میں جبین باجی اپنے شوہر کے ساتھ شفٹ ہوئی۔ یہ گھر پچھلے کچھ عرصے سے خالی پڑا تھا اور ہمارے گھر سے بالکل جڑا ہوا تھا۔ دونوں گھروں کی چھتیں بھی آپس میں ملی ہوئی تھی، ایک دیوار درمیان میں تھی۔ پہلے اس گھر میں ایک عمر رسیدہ جوڑا رہتا تھا، ان کے بچے باہر تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے والدین کو بھی اپنے پاس بلوا لیا تھا اور ان کے جانے کے بعد یہ گھر تب سے خالی پڑا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ صبح سے ہی سامان آ رہا تھا اور پھر ایک ٹیکسی سے ایک خوبصورت سی لڑکی اور ایک نوجوان اترا۔ اس لڑکے کو تو میں صبح ہی سامان کے ساتھ آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک چند ماہ کا بچہ بھی تھا۔ اماں بھی یہ سب کچھ بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کے تبصرے بھی جاری تھے جو کچھ اس قسم کے تھے: ارے دیکھ تو منو، کوئی نئی شادی شدہ جوڑا لگتا ہے۔ لڑکی تو دیکھ بڑی سونی ہے، مگر اس کا مرد بھی کم نہیں، بڑی خوبصورت جوڑی ہے۔ ہاں اماں، ان کا کاکا بھی بہت پیارا ہے، دیکھا تھا بالکل جاپانی گڈا لگتا ہے۔ میں نے بھی اماں کے تبصرے پر رائے دی۔ رات کو اماں نے کھانے میں تھوڑا سا اہتمام کیا اور مجھ سے کہا کہ پڑوس میں دے آؤ۔ میں نے بھی شوق سے ٹرے پکڑی اور دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے گھر سے نکل آئی۔ برابر والے گھر پر دستک دی، دروازہ اسی لڑکی نے کھولا۔ میں نے ٹرے اسے تھمائی تو وہ شکریہ ادا کرنے لگی۔ تب بھی اس نے اپنا نام مہاجبی بتایا اور میرا نام پوچھنے لگی۔ میں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ مناہل ہے، مگر سب منو کہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، منو اپنی امی کو ہماری طرف سے شکریہ کہہ دینا، میں گھر سیٹ کر لوں، پھر ایک دو دن میں ملنے آؤں گی۔ اس کی تو آواز بھی بڑی پیاری تھی۔ گھر آ کر پہلا فکرہ میرا یہی تھا کہ یہ تو تھی میری باجی سے پہلی ملاقات۔ کچھ دن بعد وہ نکری سی نکسک سے تیار ہوئی اور منع کو لیے ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے کھیر بنائی تھی، لذیذ اور ٹھنڈی کھیر کا کٹورا اس کے ہاتھ میں تھا جو اس نے امی کو دے دیا۔ میں نے لپک کر اس گول گھسنے سے جاپانی گڈے کو اپنی گود میں بھر لیا۔ وہ کافی دیر ہمارے گھر رہی اور امی کے ساتھ مجھ سے بھی خوب دوستی کر لی۔ اس کی شادی کو بھی 1.5 سال ہی ہوا تھا۔ شوہر جو اس کا کزن بھی تھا، اس کے دوسرے شہر تبادلے کی وجہ سے اس کی ساس نے اسے بھی ساتھ بھیج دیا تھا کہ پردیس میں جوان بیٹا اور گھر میں جوان بہو اکیلے رہے، یہ ان کی جہاں دیدہ مزاج نے گوارا نہ کیا۔ یوں یہ گھر جو کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، اس حسین کپل کے وجود سے آباد ہو گیا۔ مجھے تو مانو ایک مصروفیت ہی مل گئی تھی۔ ان دنوں میں میٹرک کے پیپر دے کر فری تھی اور فرصت اور بے فکری کے دن گزار رہی تھی۔ ایسے میں جبی باجی سے میرا خوب دل لگ گیا تھا۔ وہ شکل کے ساتھ ساتھ دل کی بھی بہت خوبصورت تھی اور اب میں تو تقریباً ہر روز ہی دن کے وقت ان کے گھر پائی جاتی۔ شرجیل بھائی تو رات تک آتے تھے، دونوں گھرانوں میں وقت گزارتے، اپنائیت اور محبت بڑھنے لگی اور گہرا رشتہ بنتا جا رہا تھا۔ اماں تو بڑی بن کر بچے کی پرورش اور دیگر مسائل کے لیے ایک رہنما تھی اور مجھے جبین باجی کی صورت میں ایک بڑی بہن اور سہیلی مل گئی تھی۔ میری تو ویسے بھی کوئی بہن نہ تھی، 2 بھائی تھے جو مجھ سے بڑے تھے اور ان کی اپنی ہی ایک دنیا تھی، وہ اسی میں مگن رہتے تھے۔ اس لیے میری زندگی میں جو بھی کمی تھی وہ جمین باجی کی آمد سے پوری ہو گئی۔ اب میں اپنی پیاری اونگی بونگی باتیں ان سے کرتی جاتی تھی، ساتھ ساتھ منع سے بھی کھیلتی رہتی اور باجی بڑے مزے سے کھانا بناتے ہوئے، کپڑے استری کرتے یا جوتے پالش کرتے مسکرا مسکرا کر میری باتوں کا مزیدار جواب دے جاتی۔ یہ بات میں نے نوٹ کی تھی کہ باجی جبین اپنے شوہر شرجیل بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، ان کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور شوہر کے کام کرتے وقت ان کے چہرے پر ایک انوکھی سی چمک اور روشنی پھیلی محسوس ہوتی۔ اس وقت وہ مجھے دنیا کی حسین ترین عورت لگتی تھی۔ کبھی تو میں باتیں کرتے کرتے چپ کر جاتی تھی اور بے خود سے ان کا چہرہ دیکھنے لگتی۔ وہ میری طرف دیکھ کر چٹکی بجاتی اور ہنس کر کہتی، کہاں کھو گئی ہو منو؟ میں نظریں ہٹا لیتی اور بے اختیار ہنستی چلی جاتی۔ کیسے بے فکری کے دن تھے۔ تب سے ہی میرے دل میں یہ ارمان جاگا کہ میرے شوہر کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل شرجیل بھائی جیسا، جیسی وہ جبین باجی سے محبت کرتے ہیں، دیوانی دیوانی سی محبت۔ میں اکثر رات کی تنہائی میں سوچتی، کبھی شام ڈھلے امی پکوان دے کر باجی جبی کی طرف بھیجتی تو ان کا الگ ہی روپ نظر آتا۔ پورا دن تو وہ گھر کے کاموں میں مگن رہتی، مگر شام ڈھلے وہ پوری دل جمی سے تیار ہوتی اور پورا سنگھار کرتی۔ اس وقت تو ان کی سجدت دیکھنے والی ہوتی تھی۔
मैं देखती थी कि वो पूरा दिन मुन्ने को भी नहीं सुलाती, अपने साथ लगाए रखती। एक दिन तो मैंने कह ही दिया, बाजी ये इतना तंग करता है कामों में, आप इसे सोने की आदत क्यों नहीं डालती? तो वो बेख्तियार कहने लगी कि मैं खुद ही नहीं सुलाती, इसलिए मैं रात में जल्दी और पुरसुकून नींद सोए। पर वो क्यों बाजी? भाई वो टाइम तो मुन्ने के पापा का होता है ना। उन्होंने लबों का एक कोना दांतों में दबाते हुए कहा, और फिर खुद भी हंस पड़ी। मैं भी साथ साथ हंसने लगी और बेख्तियार उनकी मोहब्बत के दायमी होने की दुआ मांगने लगी। बस ये उम्र तो थी ही ख्वाब बुनने वाली। वक्त के साथ साथ मेरे तस्वुरात भी एक ऐसे शरीके सफर की संगत से आबाद हो चुके थे, और मैं उनके ख्वाबों में बाजी जबीन होती। एक धुंधला सा खाका मेरे हमसफर का इन तस्वुरात में उभरता था। इन सब के बीच में एंटर कर चुकी थी। बाजी जबी के यहाँ एक और मेहमान की आमद थी। पता चला कि शर्जील भाई ने जो काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे, आखिर कामयाब हो ही गए हैं, और उनका ट्रांसफर उनके ही शहर में हो गया था। एक हफ्ते में ही उनकी वापसी थी। बाजी जबी ने जब ये खबर सुनाई तो मेरे साथ साथ अम्मी भी उदास हो गई, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा उनसे और मोहब्बत हो गई थी। मगर उनको जाना था, सो चली गई। मैंने और अम्मी ने घर का सामान पैक करवाने में उनकी काफी मदद की। एक दिन वो हमें दिलगीर छोड़कर चली गई। मुझे तो काफी दिनों तक चैन ही ना आया, वक्त ही नहीं कटता था। अजीब सी बेकली तारी थी। वो तो शुक्र है कि मेरी पढ़ाई शुरू हो गई, तो दिल को कुछ सुकून हुआ। दूसरी जानिब अम्मी ने दोनों भाइयों के लिए लड़की देखने की मुहिम शुरू कर दी, जो जल्दी इख्तिताम को पहुंच गई, और हम सब शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए। 6 महीने की शदीद तरीन मसरूफियत और तैयारी के बाद दोनों भाभियां घर में आ गई। दोनों ही अच्छी आदत की मालिक थी और काफी सुलझी हुई थी, मगर बहुत चाहने के बावजूद भी मेरी उनसे अच्छी तरह बॉन्डिंग न हो सकी, जैसी बारी जबीन के साथ होती थी। मैं वहाँ एक राजदान सहेली ढूंढती, मगर वहाँ एक रस्मी से ताल्लुक नजर आता। शायद नंद और भावत का रिश्ता दीवार में था। मेरे लिए भाई जबीन जैसा कोई और नहीं था। जो भी था, मगर मैं अक्सर अपनी भाभी और भाइयों के आपसी मामलात का मुआवजा करती, तो उसमें कहीं मोहब्बत की वो शीरनी और खलूस मुझे नजर न आता। बस वो भी बहुत से शादीशुदा जोड़ों की तरह एक साथ रह रहे थे। मैं ऐसा रूखा फिकर रिश्ता नहीं गुजारना चाहती थी। इसलिए अभी से दुआ करते कि अल्लाह पाक मुझे भी बहुत मोहब्बत करने वाला शरीके सफ़र अता करे, और मेरे दिल में भी उसकी ऐसी ही शदीद मोहब्बत डाले। भाभीियों की शादी को साल हो चुका था। मेरे भी फाइनल ईयर के पेपर चल रहे थे। इन्हीं दिनों घर में कुछ अजनबी मेहमानों की आमद होने लगी। पढ़ाई की वजह से मैं इतनी मगन थी कि मैंने किसी की बात पर कोई तवज्जो ना दी। मुझे कोई होश ही ना था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पेपरों से निमट जाने के बाद जब कुछ औसान बहाल हुए तो पता चला कि मेरे लिए कुछ रिश्ते आए थे, जिसमें से एक दो काबिल गौर थे। मैंने अम्मी से कहा, आप लोगों को मुझे इस घर से निकालने की क्या जल्दी है? अम्मी मुझे पुरनम आंखों से देखने लगी। बेटा यही दस्तूर है दुनिया का, वरना बेटी से प्यारा तो कुछ नहीं। बादशाह भी बेटी को घर में नहीं रखकर बिठाते। अब तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है, और अपने घर की हो जाओ तो हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो। और मैं अम्मी के गले लग के बेख्तियार होने लगी। अम्मी ने कहा, पगली क्यों रोती है? देख लो शादी के बाद कैसे लड़कियां शोहर को प्यारी हो जाती हैं। फिर माएँ बुलाए भी तो सौ सौ बहाने करती हैं। इस वक्त मुझे जबी बाजी की याद आ गई। वो भी अपने अम्मी के घर बहुत कम जाती थी। जब मैं पूछती तो वो अपने शोहर का नाम लेकर कहती, वो मुझे कहीं नहीं जाने देते। वो कहते हैं बस मेरे निगाहों के सामने रहा करो। क्या सच में ऐसा होता है? शादी के बाद क्या सच में औरत अपने शोहर की ही होकर रह जाती है? और क्या मैं भी शादी के बाद अपनी माँ को या मैके को भूल जाऊंगी? खैर मैं अम्मा के पास से अपने कमरे में उठकर आ गई। मुझे अब डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने जो ख्वाब सजा रखे थे, अगर वो सारे चकनाचूर हो गए तो मेरा क्या होगा? कुछ दिनों के बाद मेरी मंगनी हो गई, और साथ साथ शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अम्मा से मैंने एक दो बार डरते डरते कहा कि मैं अपने होने वाले शोहर की तस्वीर देख सकती हूँ। तो अम्मा मुझे कहने लगी कि मुझे जैसा भी है तुम्हारे लिए अच्छा है, और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें खुश रखेगा, क्योंकि मैं किसी के साथ वादा निभाना चाहती हूँ। मैंने हैरानी से अम्मा से पूछा, किसके साथ और कैसा वादा निभाना चाहती हैं आप? अम्मा के लाख पूछने पर भी अम्मा ने ना बताया। बस इतना कहा कि वक्त आने पर पता चल जाएगा। तो मैंने भी जिद छोड़ दी। दिनों का पता ही ना चला, और मेरी मेहंदी की रात आ गई। मेहंदी की रस्म के बाद मैं कमरे में बैठी थी कि अचानक ही मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा कि वो नंबर तो जबीन बाजी का था, और वो भी इतने अरसे बाद, क्योंकि बाजी का नंबर अचानक से बंद हो गया था। जिसके बाद मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की और बिना हाल चाल पूछे बस अपनी बातें करने लगी।
मैं उनसे नाराज़ थी। उन्हें कहने लगी कि बाजी, आप बहुत बुरी हैं। मैंने आपको इतना याद किया, आपने अचानक से राब्ता ख़त्म कर लिया। जानती भी हैं मैं कितना रोई थी। बाजी, आपको पता है मेरी शादी हो रही है और आज मेरी मेहंदी है। बस आप मेरे लिए दुआ करें कि शर्जील भाई जैसे आपसे मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही मेरा शोहर भी मुझसे मोहब्बत करे। मैं जानती हूँ आप नहीं आ सकेंगी, मगर फिर भी मैं आपको बहुत याद करूँगी। बस मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी आपके शोहर जैसा शोहर मिल जाए, क्योंकि मैंने ऐसे ही ख्वाब सजा रखे हैं। मैं तो बस बोलती जा रही थी और दूसरी तरफ से यूँ लग रहा था जैसे वो मुझे खामोशी से बस सुन रही हो। मैं एकदम आहिस्ता हुई और बाजी से कहने लगी कि आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही। मैंने 2-3 बार पूछा, मगर कॉल कट गई। मुझे हैरत हुई, इतने अरसे बाद राब्ता किया और मुझसे कोई बात भी नहीं की। कहीं वो किसी बात में नाराज़ तो नहीं, इसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं करती। और अगर नाराज़ होती तो मुझे कॉल क्यों करती। मुझे कुछ समझ ना आई। बहुत देर तक मैं इसी गुत्थी में उलझी रही, मगर अगला दिन बहुत मसरूफ़ था। मैं हर बात भूल गई। अगले दिन मेरा निकाह हुआ, फिर रुखसती का वक्त आ गया, पर मेरे सामने अभी तक मेरा शौहर नहीं आया था। मेरे लिए उससे ज़्यादा तजस्सुस की बात और क्या हो सकती थी कि मैंने अभी तक कोई शख्स को देखा ही नहीं था जिसके साथ मेरा निकाह हो चुका था और जिसकी मैं शरीके हयात बन चुकी थी। आखिर मेरे रुखसती का टाइम भी आ गया और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा, तुम मेरे बेटे की हालत जानती हो, अगर वो कुछ बोल भी दे तो उसका बुरा मत मानना। मैं सोचने लगी कि क्या हालत है मेरे शोहर की जो मुझे नहीं मालूम। कैसा है मेरा शोहर। सास मुझे मेरे कमरे में छोड़कर आई और मुझे तजस्सुस में रखा अपने शोहर को देखने का। बस मैं दिल में ये दुआ कर रही थी कि जैसा मैंने सोचा था मुझे वैसा ही मिले। मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी कि मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। अचानक मुझे किसी की आवाज़ आई कि तुम थक गई हो, उठो, चेंज करके आराम कर लो। इस कदर बेरुखी से कहा गया, मुझे कुछ होने लगा। मुझे आवाज़ भी सुनी सुनी लग रही थी। मैंने एकदम से घूंघट उठाकर देखा और सामने खड़े शख्स को पागलों की तरह देखने लगी। मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मैं इर्द गिर्द कमरे को देखने लगी और नफी में सर हिलाने लगी। मुझमें कुछ पूछने की शकल बाकी ना रही और ना कोई सवाल जवाब। मेरे अंदर एक एक सेकंड में हजारों सवालात उठ रहे थे, पर मैं क्या करती। क्या मुझ में सामने खड़े शख्स को देखने की हिम्मत भी थी, पर मैं उसे सवाल कैसे करती। मेरे साथ क्या हो गया था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। शादी के कुछ दिन बाद उनका रवैया पहले से भी बुरा हो गया। वो बात बात पे झगड़ने लगते, कोई मेरी बात न सुनते। मैं घुट घुट के मरने लगी। सब कुछ मुझे लगा मेरी जिंदगी से खत्म हो गया था। मैं इस हकीकत मालूम करने के लिए कोई सवाल करती तो वो बदले में मुझे गुस्से से कहते कि औरत का मतलब बेवफा है। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उसकी जिंदगी में ये मोड़ कैसे आ गया था। मेरी अम्मा ने आखिर क्या वादा किया था और किससे किया था। हजारों सवालात थे, पर जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। मैं अपनी सास से पूछती तो वो कह देती कि तुम इस बात का जिक्र मत करो। मैं कैसे न करती। मुझे तो वो दीवान की याद थी। मैं कैसे भूल सकती थी। मैं सुबह के वक्त किचन में खड़ी नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से अपने दुपट्टों के पल्लू से अपने हाथ साफ करने लगी। बाहर जाकर देखा, सामने एक सब्ज रंग का चोला पहने एक फकीर खड़ा था। मैंने उसे पैसे पकड़ाए। वो बदले में मुझे एक माला पकड़ाने लगा। मैंने हैरानगी से कहा कि बाबा ये क्या है। वो कहने लगा, इस माला को जो औरत पहनती है उसका शोहर उसका दीवाना हो जाता है। मैंने कहा ऐसा भला कैसे मुमकिन है। मैं दरवाज़ा बंद करके वापस आ गई और नाश्ता बनाने लगी, और मेरे दिमाग में उसकी बातें घूम रही थी कि ऐसा मुमकिन था। मैं सोचने लगी आखिर मैंने उससे माला क्यों ना ली। फिर मुझे जबीन बाजी की एक बात याद आ गई और आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने जल्दी से अपने आंखों की नमी साफ की। इस वक्त मुझे अपने शोहर की आवाज़ आई। वो मुझे कहने लगा कि मुझे खाना दे दो। मैंने कहा बस लेकर आ रही हूँ। वो कमरे में चला गया। मैं उसके लिए खाना ले गई और वो मेरे हाथ से ट्रे पकड़कर खाना खाने लगा। मैं उसे देख रही थी। कभी तो मेरी भी जगह उस शख्स के दिल में बन ही जानी थी। यही सोचकर मैं भी जिंदगी गुजार रही थी कि किसी दिन तो उसे भी एहसास होगा कि मैं उसकी बीवी हूँ। वो नाश्ता करके चला गया। आज मुझे अपने सारे ख्वाब टूटे हुए महसूस हो रहे थे। उस शख्स ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे रोना आ रहा था। आज मुझे समझ आई कि लोग क्यों कहते हैं ख्वाब नहीं सजाने चाहिए, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और मेरे ख्वाब भी इसी तरह टूट गए थे। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। न जाने कितनी बातें थी और कितने सवाल थे जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। चैन ही नहीं आ रहा था
कि आखिर इस शख्स की लाइफ में क्या हो गया था जो ये ऐसा कर रहे हैं। मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मुझे तो किसी ने कुछ भी ना बताया था। यहाँ तक कि अपनी सगी माँ ने भी। उन्होंने किससे क्या वादा किया था, मुझे कुछ भी ना पता था। अगले दिन फिर से वही सब्ज चोले वाला बाबा आया। फिर भी मेरा दिल ना माना कि मैं उससे वो माला ले लूं। और उसके जाने के बाद फिर वही पछतावा। उस दिन दोपहर टाइम में मैंने अपनी सास से पूछा कि बच्चा किधर गया, पर सास ने कोई जवाब ना दिया और कहा कि ये टॉपिक मत खोला करो, मिट्टी डालो, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे कोई भी कुछ नहीं बताता था। अब मैं जानती थी कि मुझे अम्मा ही बता सकती हैं, या फिर दूसरा शख्स वो खुद है जो मुझे अपने बारे में बता सकता है। मैंने रात तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन जब वो रात को घर आया तो उसका मूड काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से मैंने कोई सवाल न किया, जाकर लेट गई, क्योंकि मैं जानती थी इस वक्त अगर मैं उससे कोई बात करती तो मुझे उससे बातें सुननी पड़ती। मैं अभी खामोशी से जाकर सो गई। अगले दिन कुछ औरतें हमारे घर आई हुई थी, जो कि मेरी सास के पास बैठी थी, आपस में बातें करने में लगी हुई थी। अचानक मेरा ध्यान उनकी बातों पर गया। वो औरतें उस बाबा के बारे में ही बातें कर रही थी जो माला देने आया था। मतलब सच में उस बाबा से माला लेने से शोहर ऐसा हो जाता है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं भी उससे माला लेकर अपने शोहर से पूछूंगी आखिर उनके साथ क्या हुआ है। अगले दिन वो माला बेचने आया। मैंने जाकर एक अदद माला खरीद ली। रात के वक्त जब मेरा शोहर घर आया तो उसने फिर भी मुझसे कोई बात ना की। मैंने तो गले में माला डाली हुई थी। अब मुझे सबकी बातें झूठ लगने लगी थी, क्योंकि आज तो उसका और भी ज्यादा मूड खराब था। जैसे ही मैं उससे बात करूंगी वो तो मुझे कच्चा खा जाएगा। मैं डर कर सो गई। अचानक रात के वक्त मेरी आंख रोने की आवाज से खुली और मैं आंखें मिलते हुए उठ बैठी। मेरी नजर कमरे के दरमियान में गई। वो बच्चों की तरह सामने खिलौने बखेरे थोड़ी पर सर टकाए रो रहा था। वहां पर और भी बहुत सी चीजें मौजूद थी जो कि मैंने हमेशा देखी थी। एक अंगूठी और एक चेन पड़ी थी, और ये चीजें तो कई साल मैंने देखी थी। मैं उनके पास गई और एकदम से रोता हुआ मेरे गले से लग गया और कहने लगा कि तुम तो जानती हो ना कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर वो क्यों मुझे अकेले रास्ते में छोड़कर चली गई है। वो बुरी तरह रो रहा था। मैंने कहा कि वो गई कहाँ थी, प्लीज आप बताए ना। मुझे शर्जील जबीन आपी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो आपको छोड़कर कहाँ चली गई हैं? आपको बच्चा भी कितना प्यारा था, वो किधर है? वो रोता हुआ कहने लगा, जबीन, मैं और मेरा बेटा हम घूमने गए हुए थे और वहां पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। पहले तो मैंने अपने दोनों बच्चे खो दिए। जब जबीन को पता चला कि हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं है तो यूं लगा जैसे उसने भी जीना छोड़ दिया हो। जानती हो मैंने इतने माजूरी वाली जिंदगी गुजारी है। महाजबीन भी मुझे अकेला छोड़ गई, तुम भी एकदम छोड़ जाओगी। वो रोता हुआ कह रहा था। मैं उसके आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी छोड़कर। आप प्लीज अब रोना बंद करें, मेरे साथ ठीक हो जाए। मैं कभी भी आपको उदास नहीं करूंगी। कहने लगा, जबीन ने तुम्हारी अम्मा से वादा किया था कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी मुझसे कर देगी, क्योंकि तुम्हें मुझ जैसा शोहर चाहिए था। पर जानती हो, अब तुम मुझे जबीन की तरह लगती हो। मैं तुम्हारी कदर करना चाहता हूँ। उसके बाद नहीं जानती कि माला का असर था या कुछ भी था, मुझसे शर्जील मोहब्बत करने लगे, और उसी तरह जैसे मैं ख्वाब में देखती थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।